And I'm so happy and so proud of my interns that they have not only organized a one-day workshop, but they have also selected a very pertinent theme and a very different theme from other interns who are doing other activities in different. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين कहाँ खामा With great joy and immense exultation, I feel privileged to address you all on one-day workshop cum training program on civil defense being organized by Baird interns of Government College of Education, IASE, in collaboration with Government Boys High School, Chhatabad. Before taking this event on, we the interns of Baird College would like to present the memento to the worthy faculty members of IASE and Headmaster Government Boys High School, Chhatabad. Now, I request our Headmaster, Mrs. Muntaza Banu. Welcome all of you with great pleasure to this special event, which is one-day workshop on civil defense. This program is organized by a team of interns from the College of Education currently present in our institution. In this connection, I would like to extend a warm welcome to our Honorable Chief Guest for today's function, worthy Principal Dr. Seema Naz. Myself, Kuratulain Khan, and I, under the auspicious supervision of Professor Shabana Shabir, the mentor of our internship team, I'm going to give a brief introduction about the module behind the workshop cum training on civil defense. Civil defense or civil protection is an effort to safeguard a state's citizen from both man-made and natural disaster. It makes use of the emergency operations, guiding principles of mitigation, response, emergency evacuation, and recovery. Since the community is invariably the first responder to any disaster situation, educate awareness and preparedness of the community to respond to any such situation can be crucial in mitigation, damage, and suffering. Now coming to the theme of this workshop, that is one-day workshop on civil defense. This is a very important theme, particularly for this region. We all belong to the UT of Jammu and Kashmir, and you must know it that this region is vulnerable to not only to single hazard or disaster, but it is vulnerable to multiple hazards. So we need to be prepared at all levels. We need to be prepared at the individual level. We need to be prepared at the institutional level. We need to be prepared at the community level, and we need to be prepared at the government level. And organizing these kinds of events will sensitize our students to remain prepared for these events. मेरे लिए ये बहुत एक खुशी का मौका है कि मेरे इंटर्न्स जो डिप्यूट हुए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे एक दिन का वर्कशॉप अंडर द बैनर ऑफ सिविल डिफेंस। जब कभी कोई चीज अचानक से होती है, जैसे कि 2014 में जब सैलाब आ गया, मैं भी राजबाग में ही रहती हूँ और being at my place, I was
बिलीविंग कि यहाँ पानी नहीं आएगा, जब तक के लिए हमारे घरों में 24 फुट पानी ऊपर चढ़ गया और हम अपने ही घरों में ऊपर तीसरी मंजिल में बंद हो गए। तो डिजास्टर में सबसे पहली चीज होती है रेस्क्यू। रेस्क्यू मीन्स अपने आप को बचाना, क्योंकि जब आपकी जान होगी तो जहान है। मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे ध्यान से, जब हमारे सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पे आपको ये सिखाएंगे तो इसको ध्यान से सीखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और घर जाके अपने घर वालों को भी बताइए कि आज हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ और हमने वहाँ क्या क्या सीखा। एंड आई एम सो हैप्पी and so proud of my interns that they have not only organized a one-day workshop, but they have also selected a very pertinent theme and a very different theme from other interns who are doing other activities in different institutions. एमरजेंसी हम कैसे रिस्पॉन्ड करें ताकि हम पहले अपनी जान बचाएं, फिर खुद बच के जो फंसे हुए लोग हैं, जो मुसीबत ज़दा लोग हैं, उनकी कैसे मदद करें। भी शेकिंग होती है, अर्थक्वेक होता है, आपके स्टूडेंट्स जो है अपनी क्लासेस में हैं, तो ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या करना चाहिए, पहले पूछ लेते हैं। अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए? खुली जगह में निकलेंगे, इससे पहले कुछ कर सकते हैं। जैसे देखा गया है बुश का जो अर्थक्वेक था, उसमें देखा गया 971 बच्चे जो है स्टूडेंट्स हैं, उनकी जान चली गई। खुदा न खास्ता शेकिंग होती है, जो आपका फर्नीचर है, ठीक है, आपका टेबल है, आपकी चेयर है, और शेल्टर लेने का तरीका क्या है? शेल्टर लेने का तरीका है आपने फटाफट उसी चीज के नीचे, जो भी आपके सामने अवेलेबल है, उसके नीचे जाना है और उसके बाद जो उस चीज की टांगे हैं उनको पकड़ के रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि शेकिंग से वो चीज आपके सर से हट जाए। अगर आप क्लासरूम में हैं तो अचानक शेकिंग होती है, बाहर निकलने से बेहतर है आप क्या कीजिए, जो कोई वस्तु चीज है वहां पे उसके नीचे अपने आप को ढकिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं चाहूंगा जब भी खुदा न खास्ता शेकिंग को आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट क्या कीजिए, अपने आप को ऐसे और कोने की तरफ कवर करना है ताकि आपका हेड जो है वो इंजरी से बचे। हाथों की सीट बनानी है। हमारा जो पकड़ने का तरीका है एक दूसरे का, वो ये, इसके बजाय हम बात क्या करेंगे, इसको आप इसके, ठीक है, ये आप क्या करो, इसके कंधे पे आप अपने हाथ को बाहर ले जाए, ठीक है, ऊपर उठाने के, जैसे ये कर रहे हैं। अभी ये हमारे साथ कोऑपरेट, उस टाइम क्या होगा, ये आपके साथ कोई भी कोऑपरेशन करने वाला नहीं, आपने पूरा जोर लगा के खुद ही वहां पे एफर्ट्स लेने हैं। और उसके बाद क्या करना है, कंधे पे इसको बिठा के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ये देखिए कॉन्शियसनेस लेवल, या देखना वाकई ये कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है, कौन सा तरीका है रेस्पॉन्स चेक करने का। क्या करेंगे ये, तो हम क्या करेंगे, हम इन क्लेविकल बोन्स को टैप करेंगे, हे आर यू ओके, हे चिचका ठीक, तो इस तरह हम इसकी रिस्पॉन्स हम लेटरल पोजीशन या रिकवरी पोजीशन में डालेंगे। कैसे, सबसे पहले ये मान लीजिए यहाँ पूरी ये सरफेस है, जैसे यहाँ दिखाने के लिए हमने टेबल पे रखा, आप मान लीजिए पूरी सरफेस है, इसका आपके दूसरी साइड वाला जो बाजू है उसको स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद जो आपकी साइड वाला जो बाजू होगा वो अपोजिट चीक्स पे रखेंगे। उसके बाद जो आपकी साइड वाली टांग है उसको हम बेंड करेंगे, और बेंड करने के बाद दो जगह हम क्या करेंगे, इसको ऐसे आगे की तरफ रोल करेंगे। रोल करने के बाद इस नी का क्या काम है, इस टांग बेंड करने का काम क्या है, ये इससे आगे और लुढ़के ना, ठीक है। और उसके बाद जो विक्टिम का मुंह है उसको हम खोल के रखेंगे, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इस ग्रू में दबाइए, आपको विक्टिम की जो कैरोटिड पल्स है वो आपको हील होगी, ठीक है। कैसे, दबा के, अगर पल्स है इसका मतलब विक्टिम जो है उसका हार्ट वो अनकॉन्शियस है लेकिन हार्ट काम कर रहा है। आपका पूरा प्रेशर जो है हार्ट का वो इस जगह पे आए और उसी जगह आपका कंप्रेशन पड़े चेस्ट में, जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद
ये बनाने के बाद, पोजीशन बनाने के बाद और एक तरीका है, और एक चीज आपने देखनी है, जो आपके एल्बोज हैं उनमें कोई बैंड ना हो, शोल्डर और हैंड का एक 90 डिग्री एंगल बने, स्ट्रेट हो, और उसके बाद जो आपकी बैक हो वो स्ट्रेट हो। उसके बाद आपने कंप्रेशंस देने हैं। उसके बाद क्या है? एम की तरफ जहां आग लगी हो उस चीज को टारगेट करना है, ठीक है। आज के लिए वहां से मैं उस रस्सी से पकड़ूंगा जिससे मैंने टाइट किया था, ऐसे, और जो मैंने अभी रस्सी टाइट की थी उसको मैं ऐसे, और लास्ट में जो रस्सी, जिस रस्सी को मैंने खींचा उससे नीचे आऊंगा, ठीक है। नीचे आके मेरा जितना भी वेट डालेंगे ये आपको वहां से हिट निकलने वाला नहीं है। अब मैं नीचे पहुंच गया, मेरा वेट है इस पे, अब मैं नीचे पहुंच गया, मुझे रस्सियां वापस चाहिए। मैं क्या करूँगा, जो पहली वाली रस्सी है उसको ऐसे खींचूंगा तो आपकी वो वापस कर जाएगी। As we come to an end of this one-day workshop on civil defense, I would like to extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for gracing us with your presence today and making this event a truly memorable one.